Hello everyone. In this video, we are going to discuss cruelty as a ground of divorce. Now, cruelty as a ground of divorce has only been added in 1976. हमें पता है हिंदू मैरिज एक्ट में 1976 में अमेंडमेंट एक्ट एक आया था जिसके थ्रू क्रूअल्टी एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स ऐड हुआ था. इससे पहले तक क्रूअल्टी वाज जस्ट अ ग्राउंड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन एंड नॉट ऑफ डिवोर्स. सो लेट्स कम टू सेक्शन 13. Yes, here under subsection 1, clause 1a, it has been given has after the solemnization of the marriage treated the petitioner with cruelty. So, cruelty is a ground of divorce which has been given under section 13 subsection 1 clause 1a. ठीक है, 1a है, इसी से हमें पता लग रहा है कि मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट से ये एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है. फर्स्ट थिंग इज दिस. नाउ हियर इट हैज बीन गिवन आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज. ठीक है, तो मैरिज से पहले पेटिशनर को कैसे ट्रीट किया जाता था, कैसे नहीं किया जाता था, इट डजंट मैटर. बट solemnization of marriage के बाद the petitioner should not be treated with cruelty. Now, if the petitioner is treated with cruelty, then he or she has a ground of divorce. Now, I have used the words he or she, or I am using the word petitioner and respondent. मैं यहाँ पर कोई gender biased word नहीं use कर रही हूँ. ठीक है, मैं यहाँ पर gender neutral words use कर रही हूँ. That means cruelty can be committed against husband as well as wife. Okay, so the petitioner can be husband and wife. ठीक है, अब हम क्रूअल्टी को अगर ध्यान से समझे. नाउ द वर्ड क्रूअल्टी हैज नॉट बीन डिफाइंड इन हिंदू मैरिज एक्ट. ठीक है, क्रूअल्टी की हमें यहाँ पर कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं गिवन है. क्रूअल्टी हैज बीन डिफाइंड इन भारतीय न्याय संहिता. ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में उसकी डेफिनेशन हमें गिवन है अंडर सेक्शन 86 of BNS. Also, section 498A of IPC also deals with cruelty. So let's just come to that. First of all, we'll discuss the provision under IPC and then we'll discuss the definition under BNS. Now here section 498A which is given under chapter 20A of the IPC. ठीक है, पहले हम IPC का provision discuss कर रहे हैं, in which under section 498A the cruelty has been defined. But यहाँ पर जो cruelty की बात हो रही है वो सिर्फ husband या husband का relative अगर wife के against cruelty commit कर रहा है तो उसके context में बात हो रही है. So only this particular aspect is an offense under IPC. So in this provision it has been given that cruelty means any willful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health of the woman. ठीक है, कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा नेचर विच विल ड्राइव द वुमन टू कमिट सुसाइड, जो वुमन को इंसिस्ट करे, जो ड्राइव करे उसको सुसाइड कमिट करने के लिए या फिर खुद को एक ऐसी इंजरी पहुंचाने के लिए या फिर उसको एक्चुअली किसी एक्ट से कोई ऐसी इंजरी हुई है विच एंडेंजर्स हर लाइफ और नॉर्मल हेल्थ. ठीक है, तो वो क्रूअल्टी होगी. देन बी स्टेट्स harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand. कोई भी अनलॉफुल डिमांड जिसको वुमन पूरा नहीं कर पा रही है या फिर जो हस्बैंड या रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड है वो चाहते हैं कि वो वुमन उस डिमांड को पूरा करे बट वो नहीं करती है या उस वुमन से वो डिमांड पूरा करवाने के लिए उसको इंसिस्ट करने के लिए उसके अगेंस्ट क्रूअल्टी कमिट करी जाती है, देन इन दैट सिचुएशन दिस विल आल्सो कम अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी. तो 498A ऑफ आईपीसी जो है वो सिर्फ हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड को ऑफेंडर्स बना रहा है और जो वुमन है वो बेसिकली यहाँ पर विक्टिम है. ठीक है, बट what about the cases wherein the woman is not the victim? Instead, she is the offender and the husband or the relatives of husband are actually the victims. So this has not been dealt with under IPC. Now coming to the provision of BNS. So section 85 again it talks about husband or relatives of husband if they commit
cruelty against the wife, then they are liable. The court will impute penal offense in such case. So section 86 defines cruelty which has been given as an offense under section 85, वो section 86 में define कर दिया है. The definition of cruelty is more or less the same, the only difference being that here health specifically includes mental health as well. ठीक है, सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी में हमें कहीं पर भी मेंटल हेल्थ की बात नहीं करी थी, फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करी थी, वहां पर एक टर्म यूज हुआ था सिर्फ, वो था हेल्थ, एंड इट वाज अपॉन अस टू इंक्लूड मेंटल हेल्थ विद इन द एम्बिट ऑफ हेल्थ. बट यहाँ पर स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है वेदर मेंटल और फिजिकल. ठीक है, तो मेंटल हेल्थ को भी स्पेसिफिकली इंक्लूड कर दिया गया है विद इन द एम्बिट ऑफ क्रूअल्टी. ठीक है, तो अब मेंटल हेल्थ को भी डायरेक्टली अगर टारगेट किया जाता है, अगर हस्बैंड या रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड मेंटल हेल्थ को किसी तरह की हानि पहुंचाते हैं, तो उस केस में भी दे आर लायबल अंडर सेक्शन 85 ऑफ BNS. नाउ दिस वाज रिगार्डिंग क्रूअल्टी एज एन ऑफेंस, जिसमें हमें पता है कि ऑफेंडर कौन है, हस्बैंड है या रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड है, एंड विक्टिम कौन है, वाइफ है. ठीक है, दिस इज प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शंस 498A ऑफ IPC एंड सेक्शन 85 ऑफ BNS. बट अगर हम यहाँ पर बात करें, फॉर द पर्पसेस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्रूअल्टी हैज बीन मेड अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स. ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन जेंडर न्यूट्रल वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर जेंडर या स्पेसिफिक जेंडर के कंटेक्स्ट में कुछ नहीं यूज हुआ है. दैट मीन्स इवन अ हस्बैंड कैन बी विक्टिम इन दिस केस. ठीक है, so this section 13 subsection 1 clause 1A is first of all gender neutral, which means both husband and wife can be victims. Of course दोनों साथ में नहीं होंगे. ठीक है, या तो हस्बैंड विक्टिम होगा या फिर वाइफ विक्टिम होगा. फॉर दिस वी नीड टू सी हु इज द पेटिशनर एंड हु इज द रिस्पोंडेंट. नॉर्मली पेटिशनर गोज टू कोर्ट टू ऑब्टेन डिवोर्स, तो पेटिशनर ही क्लेम करता है कि मैं विक्टिम हूँ और मुझे डिवोर्स चाहिए क्रूअल्टी के ग्राउंड पर. ठीक है, तो पेटिशनर नॉर्मली कोई भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है एंड वाइफ भी हो सकती है. नाउ क्रूअल्टी कैन बी फिजिकल एज वेल एज मेंटल. ठीक है, अब अगर हम फिजिकल क्रूअल्टी की बात करें, ठीक है, कोई हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को हैरेस कर रहा है. ठीक है, वो अपनी वाइफ को मारता है, पीटता है, उसको अब्यूज कर रहा है, तो फिजिकल क्रूअल्टी एक्चुअली कैन बी सीन, बिकॉज फिजिकल क्रूअल्टी के एक्ट्स, उसके इंस्टांसेस कैन बी सीन by other people and even by the wife. Even the scars that are left on the wife, ठीक है, वो भी अपने आप में एक इंडिकेटर होता है कि हाँ फिजिकल क्रूअल्टी हुई है वाइफ के अगेंस्ट. ठीक है, सिमिलरली अगर वाइफ हस्बैंड को पीटती है, तो उस केस में भी अगर हस्बैंड की बॉडी पर स्कार्स हैं, ठीक है, या फिर वो फिजिकल क्रूअल्टी होते हुए किसी ने देखा है, तो वो अपने आप में एक एविडेंस बन जाता है. ठीक है, वो स्कार्स अपने आप में एविडेंस बन जाते हैं. तो फिजिकल क्रूअल्टी कैन डायरेक्टली बी सीन एंड कैन डायरेक्टली बी फेल्ट. बट व्हाट अबाउट मेंटल क्रूअल्टी? Mental cruelty is something which is felt by a person. So actually the question regarding whether a particular act is mental cruelty or not, or it amounts to mental cruelty or not, is a question of fact first of all. ठीक है, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है which depends on facts and circumstances of each case. तो हम एक अम्ब्रेला टर्म यूज करके नहीं बोल सकते कि हाँ ये एक्ट होगा तो ये मेंटल क्रूअल्टी होगा, या वो एक्ट होगा तो वो मेंटल क्रूअल्टी होगा, बिकॉज वी नीड टू सी द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस. ठीक है, we cannot see each and every isolated act and determine whether that particular act amounts to cruelty or not. Now for instance, a person sees, मान लो एक X है, ठीक है, वो देखता है कि एक कपल है Y और Z. ठीक है, Y और Z अपने घर में है, X घर इनके घर के बाहर से निकल रहा है, एंड वो देखता है कि जो Z है, दैट इज द वाइफ, शी इज हर्लिंग अब्यूजेस टुवर्ड्स Y. ठीक है, Z जो है वो कॉन्स्टेंटली अब्यूज कर रही है Y को, और बहुत तेज तेज चिल्ला रही है और अब्यूज कर रही है. ठीक है, तो X ने तो ये इवेंट देखा, अब Y जाता है कोर्ट और वो बोलता है कि मुझे इस ग्राउंड पर डिवोर्स चाहिए, दैट Z इज कमिटिंग मेंटल क्रूअल्टी अगेंस्ट मी. ठीक है,
और एक्स वहां पर चला जाता है, वो विटनेस बन जाता है और वो बोलता है कि जी का जो बिहेवियर है वो एक्चुअली क्रूअल है वाई की तरफ, ठीक है। बट यहाँ पर कैच ये था कि उससे 5 मिनट्स पहले ही वाई ने जी को फिजिकली अब्यूज किया था। एंड उस फिजिकल अब्यूज की वजह से जी ने वाई को अब्यूजिव वर्ड्स बोले, ठीक है। बट एक्स ने वो फिजिकल अब्यूज होते हुए नहीं देखा, ही जस्ट सॉ दैट जी हर्ड अब्यूजेस टुवर्ड्स वाई, ठीक है। सो दैट मीन्स जब हम मेंटल क्रूअल्टी की बात करते हैं वी नीड टू सी ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इन टोटल, ठीक है। हम एक आइसोलेटेड एक्ट को डिटर्मिन करके, एक आइसोलेटेड एक्ट को लेकर हम ये नहीं बोल सकते कि ये क्रूअल एक्ट है, हमें उसके बैकग्राउंड सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे, वो एक्ट हुआ तो क्यों हुआ हमें ये डिटर्मिन करना पड़ेगा, एंड तभी हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्ट मेंटल क्रूअल्टी हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे। Plus, you need to remember that a particular act which is cruel in one case may not be cruel in other case. So, एक particular act है वो एक couple के लिए cruelty है, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे कपल के लिए भी क्रूअल्टी ही हो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस एक कपल है ए और बी, ठीक है, एंड उनके घर का जो माहौल है वो लोग आपस में एक दूसरे को अब्यूजिव वर्ड्स में ही बात करते हैं, ठीक है, अब्यूजिव वर्ड्स से ही रेफर करते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल वैसा है, बट दिस वुड नॉट अमाउंट टू क्रूअल्टी इन दिस केस। अब एक और कपल है, मान लो एफ एंड जी, ठीक है, एंड दे बिलोंग टू अ वेरी हाई सोसाइटी, हाई प्रोफाइल सोसाइटी है इनकी, ठीक है। अब यहाँ पर एक दिन एफ जो है वो जी को गाली दे देता है, ठीक है, एफ जी को गाली दे देता है, ही यूजेस अब्यूजिव वर्ड्स फॉर जी। अब इस केस में जी पर मेंटल क्रूअल्टी हुई है, ठीक है। अगर यही वर्ड्स ए ने बी को बोले होते तो वो शायद मेंटल क्रूअल्टी नहीं होती इस केस में, बिकॉज उनका नॉर्मल सराउंडिंग ऐसी है, उनका नॉर्मल बैकग्राउंड ऐसा है, बट यहाँ पर क्योंकि बैकग्राउंड वैसा नहीं है इसकी वजह से जो एक्ट है वो इस केस में cruel होगा, इस केस में this act would amount to cruelty. So the act is same in both the cases, but in one case it amounted to cruelty, but in other case it did not amount to cruelty. So ये भी चीज है कि a particular act can be cruel in one case and may or may not be cruel in the other case. So accordingly we need to see all the facts and circumstances in total and accordingly determine whether that particular act amounts to cruelty or not. Now, cruelty should be distinguished from normal wear and tear of life. So, cruelty is different from normal wear and tear of life. सो अगर दो पर्सन्स हैं उनके बीच में टेम्परामेंटल इश्यूज है, मेयर टेम्परामेंटल इश्यूज विल नॉट अमाउंट टू क्रूअल्टी। सो अगर एक कपल आपस में इनकम्पैटिबल है, ठीक है, उनके टेम्परामेंटल इश्यूज हैं, ईगो रिलेटेड इश्यूज हैं, इन सब की वजह से हम ये नहीं बोलते हैं कि जो एक्ट्स हो रहे हैं उन दोनों कपल्स के बीच में वो क्रूअल है या किसी भी तरह की मेंटल क्रूअल्टी हो रही है, ये नहीं बोला जाता है। सो नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ मैरिड लाइफ डज नॉट अमाउंट टू क्रूअल्टी। क्रूअल्टी हम बोलते हैं कि तब होता है जब it becomes impossible for a person to bear the acts of the other person, ठीक है, इम्पॉसिबल हो जाता है उसके एक्ट्स को बियर करना, इनफैक्ट उस पर्सन के साथ रहना भी। जब इस एक्सटेंट तक पहुंच जाती है कहानी तब हम बोलते हैं कि क्रूअल्टी हुई है। इट बिकम्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन टू बियर दैट अदर पर्सन, टू बी विद हिम और हर और टू बियर द एक्ट्स ऑफ दैट अदर पर्सन। तो हम उन एक्ट्स के कंटेक्स्ट में बोलते हैं कि क्रूअल्टी हुई है। सो दैट मीन्स इट इज ऑफ कोर्स द एक्सट्रीम ऑफ ऑल द सिचुएशंस, ठीक है। हम नॉर्मल वियर एंड टियर को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, मेयर टेम्परामेंटल इश्यूज को नहीं कंसिडर कर रहे हैं। जब एक एक्सट्रीम पर बात पहुंच जाती है तब हम बोलते हैं कि क्रूअल्टी हुई है। सो कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं इसके बारे में। मान लो एक वाइफ है, ठीक है, वो अपने हस्बैंड से एक मेयर डिज़ायर अपनी शेयर करती है कि हाँ वो अलग रहना चाहती है हस्बैंड के पेरेंट्स से, ठीक है, वो चाहती है कि वो और उसका हस्बैंड अलग रहे उसके पेरेंट्स से, ठीक है। यहाँ पर ये क्रूअल्टी नहीं हुई है, ठीक है, बट अगर इस वजह से वाइफ जो है वो कॉन्स्टेंटली उसके पेरेंट्स को अब्यूज करने लगे, उसके पेरेंट्स को टॉर्चर करने लगे, उनको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके रेफर करने लगे, तो उस केस में वाइफ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी क्रूअल्टी के लिए एंड हस्बैंड कैन डिवोर्स हर ऑन दिस ग्राउंड। सिमिलरली इफ द हस्बैंड इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग डिमांड्स फॉर डाउरी देन इन दैट सिचुएशन हस्बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल क्रूअल्टी। या फिर हस्बैंड कॉन्स्टेंटली टॉन्ट करता है वाइफ को दैट शी इज बैरन और शी कैन नॉट गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड, ठीक है, कॉन्स्टेंटली 24 घंटे, तो उस केस में वो भी
क्रूअल्टी होगी। या फिर वाइफ हस्बैंड के कलीग्स के सामने, ठीक है, उसको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके उससे बात करे, या फिर उसको अब्यूजेस हॉल करे, या फिर हस्बैंड के कलीग्स के सामने बिल्कुल बाहर आने से मना कर दे, या फिर वो चाय देने से मना कर दे, कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से जो कलीग्स है उनकी नज़रों में, उनकी आईज में जो हस्बैंड है उसकी इमेज बिल्कुल डिग्रेड हो जाए, ठीक है, ऐसा कोई भी एक्ट, तो उस केस में भी वाइफ जो होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी क्रूअल्टी के लिए। ऑल्सो इफ द वाइफ इज प्रेग्नेंट और वो हस्बैंड को बिना बताए वो अपना बच्चा अबॉर्ट करवा लेती है, देन दिस ऑल्सो अमाउंट्स टू मेंटल क्रूअल्टी ऑन हस्बैंड। और इफ द हस्बैंड इंसिस्ट टू कंडक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ देयर फीटस, तो इस केस में भी ये क्रूअल्टी होगी वाइफ पर, ठीक है। सो लीगली तो हस्बैंड वैसे भी सेक्स डिटर्मिन नहीं कर सकता है फीटस का, बट एक्चुअली भी फ्रॉम द मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो अ हस्बैंड कैन नॉट इंसिस्ट द वाइफ टू कंडक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन ऑपरेशन। ओके, नाउ वी हैव डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स वेयरइन द एक्ट्स आर अमाउंटिंग टू क्रूअल्टी, ठीक है, या तो फिजिकल क्रूअल्टी हो रही है या फिर मेंटल क्रूअल्टी हो रही है। क्रूअल्टी इज हैपनिंग इन सम फॉर्म और द other. Now, what happens when one partner is constantly acting cruelly towards the other partner, but the other partner is condoning that act, ठीक है। एक पार्टनर है उसका क्रूअल एटीट्यूड है दूसरे पार्टनर की तरफ, इनडिफरेंट एटीट्यूड है, या फिर मान लो हस्बैंड और वाइफ ही हैं, ठीक है, एंड हस्बैंड हैज अडल्टरस नेचर, that means he is getting involved sexually with other women, ठीक है, and the wife knows about it. वाइफ को पता लगता है कि हस्बैंड का अडल्टरस नेचर है, वो दूसरी विमेन के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, या फिर हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, एंड द वाइफ शी विलिंगली कंडोन्स द एक्ट, ठीक है। कॉन्डोनेशन कब होगा? हम बोलते हैं कि कॉन्डोनेशन तब होगा जब वाइफ जो है या जो विक्टिम स्पाउस है वो एक्चुअली माफ कर देता है दूसरे पार्टनर को। और सिर्फ माफ करना नहीं होता यहाँ पर होता है कि नॉर्मल जो मैरिटल लाइफ है वो उनकी रिज्यूम हो जाती है, और वो डिटर्मिन होता है वेदर द पार्टनर्स हैव कोहैबिटेड और नॉट। तो मान लो वाइफ को जब पता लगा, उसके बाद कुछ दिन इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, एंड उसके बाद वाइफ कंडोन कर देती है इस एक्ट को, एंड दे गेट सेक्सुअली इन्वॉल्व, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ कोहैबिट विद ईच अदर। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि वाइफ ने वो एक्ट क्या कर दिया? कंडोन कर दिया। वो बेसिकली पूरा जो क्रूअल एक्ट था वो कंडोन कर दिया। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस कॉन्डोनेशन? Condonation basically leads to suspension of the earlier cruel act. वो सस्पेंडेड एनिमेशन में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने सस्पेंशन वर्ड यूज किया है, तो वो एक सस्पेंडेड एनिमेशन में चला गया, मतलब वो कुछ टाइम के लिए वो बात दब गई है, ठीक है, वो सस्पेंडेड एनिमेशन में चली गई है, वो कुछ टाइम के लिए बात दब गई है। सो एज लॉन्ग एज द हस्बैंड एंड वाइफ दे आर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, ठीक है, तब तक तो वो एक्ट रहेगा कंडोन्ड। लेकिन मान लो हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, दोनों के बीच में अब नॉर्मल उनकी लाइफ चल रही है, वाइफ को पता लगा था, उसने लेकिन माफ कर दिया हस्बैंड को, ठीक है, एंड दे इवन कोहैबिटेड विद ईच अदर एंड नाउ दे आर लिविंग नॉर्मली। अब हस्बैंड किसी थर्ड पर्सन के साथ वापस अडल्ट्री कमिट कर लेता है, ठीक है, वो किसी थर्ड गर्ल के साथ वापस इन्वॉल्व हो जाता है, मान लो जी है, ठीक है। अब ये मे बी पहले वाली ही वुमन हो या कोई और वुमन हो, बट ही कमिट्स अडल्ट्री अगेन, ठीक है। अब इस केस में हमने क्या देखा था? पहले तो एक्ट जो था वो क्रूअल एक्ट था, वो सस्पेंडेड एनिमेशन में चला गया था, राइट, बट अब वो एक्ट वापस रिवाइव हो जाएगा। दैट मीन्स इफ द वाइफ फाइल्स अ सूट फॉर डिवोर्स, ठीक है, अगर एक डिवोर्स के लिए सूट फाइल किया गया तो उस केस में जो हस्बैंड है वो सिर्फ इस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो सिर्फ जी के साथ अडल्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बट वो पहले वाले अपने अडल्टरस कंडक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। सो दैट मीन्स द इफेक्ट ऑफ कॉन्डोनेशन इज दैट इट जस्ट गोज इनटू
सस्पेंडेड एनिमेशन, जैसे ही एक नया एक्ट आता है उससे क्या होता है, वो जो पहले वाला एक्ट था, वो पहले वाला जो क्रूअल एक्ट था वो भी रिवाइव हो जाता है, एंड दैट ऑल्सो बिकम्स अ ग्राउंड ऑफ divorce. So this has been dealt with under section 23. Please come to that. So here section 23 subsection 1 clause B, it states that where the ground of the petition is the ground specified in clause 1 of subsection 1 of section 13, the petitioner has not in any manner been accessory to or connived or condoned the act or acts complained of, or where the ground of the petitioner is cruelty, the petitioner has not in any manner condoned the cruelty. तो अगर petitioner जो है उसने क्रूअल एक्ट हुआ, ठीक है, वो सारा कंडोन कर दिया, देन इन दैट केस द petitioner कैन नॉट गो टू कोर्ट एंड क्लेम डिवोर्स. ठीक है, यहाँ पर जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक नॉर्मल कोहैबिटेशन हो गया, उसके बाद वाइफ कोर्ट जाकर नहीं बोल सकती थी कि हाँ मुझे डिवोर्स चाहिए बिकॉज द हस्बैंड हैज बीन क्रूअल विद मी. ठीक है, बट अगर ये कॉन्डोनेशन के बाद वापस हस्बैंड कोई और एक्ट ऐसा कमिट करता है जिससे वो पहले वाला एक्ट भी रिवाइव हो जाता है, तब वाइफ जा सकती है कोर्ट और डिवोर्स ले सकती है इस ग्राउंड पर. नाउ अ लैंडमार्क जजमेंट ऑन दिस एस्पेक्ट इज दास्तानी वर्सेस दास्तानी, नारायण, गणेश, दास्तानी वर्सेस सुचिता, Narayan, Dastani. This was decided by the Supreme Court in 1975. This is a very landmark judgment on cruelty as a ground of divorce, also popularly known as Dastani versus Dastani. Now in this case both the parties belong to a very affluent background. ठीक है, दोनों highly educated है. In fact the husband is a scientist. ठीक है, and जो wife है उसके जो father है he is a government officer. ठीक है, तो दोनों ही parties बहुत ज़्यादा affluent है, educationally rich background है दोनों का. ठीक है, now the husband is the petitioner in this case. And he goes to court to obtain divorce and he claims police protection from the court. ठीक है, वो कोर्ट को बोलते हैं कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए अपनी वाइफ से, बिकॉज ही क्लेम्स दैट द वाइफ इज नॉट ट्रीटिंग हिम वेल. ठीक है, वाइफ का जो एटीट्यूड है वो काफ़ी क्रूअल है हस्बैंड की तरफ. ठीक है, इनफैक्ट जो वाइफ के फैमिली मेम्बर्स है, जो हस्बैंड के इन लॉज है, ठीक है, वो हस्बैंड को डायरेक्टली टॉर्चर कर रहे हैं और वो उसको कोर्स कर रहे हैं, वो उसको फोर्स कर रहे हैं. So he claims police protection on this ground from the court, and he even says that his life is at risk. ठीक है, and as a counter claim in this case the wife is claiming maintenance from husband. ठीक है, wife ने भी counter claim file किया, उसने husband से maintenance claim करा. Now the court in this case was satisfied that yes the wife was cruel towards the husband. ठीक है, उसका जो एटीट्यूड था, उसके जो एक्ट्स थे वो क्रूअल थे हस्बैंड की तरफ, बिकॉज ऑफ द एविडेंसेस प्रेजेंटेड. द कोर्ट वाज ऑफ दिस ओपिनियन. ठीक है, दिस वाज कंप्लीटली सेटल्ड, बट अ न्यू ट्विस्ट इन दिस केस वाज दैट द वाइफ वाज प्रेग्नेंट फॉर द थर्ड टाइम. ठीक है, जब केस फाइल हुआ था तब वाइफ प्रेग्नेंट थी. So now the wife claimed that I am pregnant. That means clearly we have cohabited. ठीक है, वाइफ ने बोला कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो दैट क्लियरली मीन्स कि हस्बैंड और वाइफ उन दोनों ने कोहैबिट किया तभी वो प्रेग्नेंट है. ठीक है, नाउ द इशू अरोज वेदर दिस विल अमाउंट टू कॉन्डोनेशन और नॉट. द कोर्ट इन दिस केस डिनाइड द हस्बैंड दिस रिलीफ ऑफ डिवोर्स. ठीक है, उसको डिवोर्स डिनाई कर दिया गया, एंड द कोर्ट स्टेटेड
that all the earlier acts of the wife were condoned because they have cohabited, and the pregnancy of wife is a very well evidence of that the husband and wife have cohabited. So in this case the court agreed that yes, the attitude of wife was cruel. She used to hurl abuses to the husband, ठीक है, एंड वो काफ़ी काफ़ी टाइम तक हस्बैंड से बात नहीं करती थी, वो चिट्स के थ्रू कम्युनिकेट करती थी, बट शी डिडंट यूज टू कम्युनिकेट नॉर्मली, ठीक है, इनफैक्ट वो अपने सर्वेंट के थ्रू हस्बैंड से बात करती थी. सो द facts of the case are very extreme. Court was of the opinion that yes, the acts of the wife were cruel, but because the husband has himself condoned all the cruel acts of the wife, ठीक है, हस्बैंड ने खुद कंडोन किया, देयर वर नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन द पार्टनर, ठीक है, एंड वो जो नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशंस है वो अपने आप में इंडिकेट कर रहा है दैट द हस्बैंड हैज हिमसेल्फ कंडोन दोज एक्ट्स, एंड that is why in this case the court denied divorce to the husband. So this was all regarding cruelty as a ground of divorce. Thank you.